very warm welcome to Times Now's Election Yatra with me, Pratibha Chandran. Today, we're coming to you live from the Rohtas district in Bihar. This is in the Shahabad region. In fact, we are currently in the Sher Shah Suri tomb, and this is one region that has been known for even defeating the Mughals. It was a Suri dynasty that had once defeated the Mughals, and you can see the tomb here in all its majesty here with the red stone Islamic Pashtun style of architecture. This region has found its way into history books much before it even became a part of modern day Bihar, and today it's seeing a battle, although of a completely different kind. It is a political kind of battle that's taking place. It's the battle between the NDA as well as the Mahagathbandhan. How is that playing out? Let's find out. City of Sasaram, a city that has had a long history with the pre-Mughal era. It's a city that's often been known across Bihar for its rich culture and history. Home to UNESCO World Heritage Site, the tomb of Sher Shah Suri, Sasaram served as the capital of Sur dynasty at one point of time. While people still talk about the battles he fought with the Mughals, today the conversation is about the political battle here. After all, Sasaram is in the heart of Bihar's Shahabad region, one that used to be a bastion of the NDA before a catastrophic collapse here over the last few years. In the previous assembly election, the NDA had a forgettable experience here, with the alliance not even able to secure a quarter of the seats on offer. In the Lok Sabha polls last year, the NDA couldn't muster even a single seat of the 4 Lok Sabha seats here in Shahabad. But this time, the Modi-Nitish duo have tried to change strategy and tap into the potential of their allies to win back their lost bastion. The Shahabad region consists of 4 districts, one of which is the Rohtas district. Now, this was one ground where the NDA had done really well back in 2010. They had won 19 of the 22 seats from these districts. But the performance saw a very, very phenomenal dip when in the previous election in 2020, there were only 2 seats that they could manage to win of all the seats. What has changed and what is the Upendra Kushwaha factor going to be this time around? We find out. As we make our way through Sasaram and interact with the people, it's clear that the caste equation here cannot be ignored. After all, Shahabad region is dominated by the presence of the Kushwahas and the Rajputs. In this election, the NDA is banking on their allies to avoid past mistakes from 2020 and 2024 Lok Sabha. Of the 6 seats offered to Upendra Kushwaha's RLM, 2 seats fall within the Shahabad region itself. Upendra Kushwaha now has the responsibility to lead from the front to improve NDA's fortunes here in Shahabad. We're in the Sasaram region and we're going to be talking about the X factor which could work for the NDA. We have with us Mr. Upendra Kushwaha ji. Could he work for the NDA? How is it going to work out? Let's find out from him. Thank you so much for joining us. हमारी टाइम्स नाउ की इलेक्शन यात्रा में इलेक्शन का दौरा कैसा चल रहा है? देखिए, इलेक्शन में तो बिहार में अब सेकेंड फेज में जहां मतदान होना है वहां का प्रचार अभियान चल रहा है। स्वाभाविक रूप से हैक्टिक तो हो ही जाता है, लेकिन जनता के
रुझान को देखकर सारी थकावटें दूर हो जाती है। जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो एक तरफ से लोगों का उत्साह देखकर, लोगों का चेहरा देखकर स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए की सरकार लोग बिहार में फिर से बनाना चाहते हैं। तो बहुत दिन भर हैक्टिक होने के बावजूद मन प्रसन्न रहता है। अच्छा, इस शाहबाद रीजन की बात करूंगी। 2020 में एनडीए के लिए बहुत बुरा रिजल्ट था, यहाँ से आप भी साथ नहीं थे। इस बार क्या बदलाव देखा है आपने, जो आपको लगता है कि लोग भी चाहेंगे कि एनडीए आ जाए इस तरफ से? देखिए, ठीक कहा आपने, 2020 में एनडीए के खिलाफ रिजल्ट चुनाव में आ गया था और खिलाफ एनडीए के खिलाफ रिजल्ट हो उसमें हम भी लगे हुए थे। हम भी चाह रहे थे कि एनडीए का जितना नुकसान कर दें। तो 2020 की बात अलग थी। चिराग पासवान जी भी उस समय एनडीए के खिलाफ, मतलब जेडीयू के खासकर तो खिलाफ ही थे। तो वोट का डिवीजन हो गया, एनडीए का वोट ही बट गया, उसके चलते यह परिणाम आया था। लेकिन इस बार एनडीए का वोट पूरे तौर पे इंटैक्ट है। एक आध शायद अपवाद हो जाए, मुझको नहीं पता, नहीं तो लगभग सभी सीटों पर शाहबाद के इलाके में एनडीए की जीत होगी। आपका यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि एनडीए में, ऐसा महागठबंधन ने कहा है कि एनडीए में बहुत डिवाइड है। पहले सीट शेयरिंग पे हुई, आपने भी अमित शाह जी से भी बात की थी सीट शेयरिंग की। अब अगर चाहे सॉल्व हो गई हो प्रॉब्लम्स, अगर सरकार बनेगी तो क्या फिर से आ जाएंगी वो प्रॉब्लम्स एनडीए में? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, हर पार्टी चाहती है अलायंस में कि उनकी पार्टी का अधिक से अधिक व्यक्ति चुनाव लड़ पाए। तो स्वाभाविक रूप से हर पार्टी चाहती है कि हमारे खाते में, हमारे हिस्से में ज़्यादा सीट हो, हमारे हिस्से में ज़्यादा सीट हो। ये तो कोई भी, इवन महागठबंधन में भी यही हो रहा था। हम लोगों ने तो पहले तय कर लिया, एनडीए ने तो चुनाव की शुरुआत नॉमिनेशन से पहले तय कर लिया। उनके यहाँ तो एक ही गठबंधन की दो पार्टियों की ओर से नॉमिनेशन तक हो गया। अभी भी कई जगह कांग्रेस पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, वीआईपी के भी उम्मीदवार हैं अभी भी। तो उनके यहाँ ज़्यादा सिर फुटौल है, हमारे यहाँ सिर फुटौल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। स्वाभाविक रूप से जो एक सामान्य प्रक्रिया या सामान्य चाहत होती है, उसके हिसाब से थोड़ी इच्छा थी, लेकिन सारी चीज़ जो तय हो गई फाइनल है। तो अब ठीक है सब, बिल्कुल 100%। अच्छा, और तेजस्वी जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि बहुत सालों तक बिहार ने देख लिया नीतीश जी को, अब नीतीश जी को नहीं देखना चाहती है बिहार। उन्होंने कहा है कि युवा नेता चाहती है बिहार। वो कह रहे हैं कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका टाइम, मतलब सीएम का टाइम हो गया। उनको क्या जवाब देंगे? अब वो कह रहे हैं कि सीएम का टाइम हो गया, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन उनको जानना चाहिए कि उनका टाइम अभी नहीं आया है। अभी और दन बैठक करें, अभी और एक्सरसाइज करें, शायद भविष्य में कभी जनता देखेगी। सबसे बड़ा तो उनका जो इतिहास है, तेजस्वी का जो मेरिट, मतलब पार्टी में जो फॉलोइंग है, वही उनका, समझ लीजिए एक तरह से कि उनके लिए वही उनकी पूंजी भी है। और जो हिस्ट्री है आरजेडी की सरकार के समय का, वही उनके लिए ड्रॉबैक भी है। तो दोनों है, उनका पीछा अभी नहीं छोड़ेगा। लोगों को याद जब होता है ना कि 2005 के पहले कैसा बिहार था, तो लोग अंदर से सिहर जाते हैं। आतंक, पाखंड, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार, तो इस तरह की घटना रोजमर्रे की घटना बन चुकी थी और विकास नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। तेजस्वी जी को भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, लगे रहते हैं इस जिला में उस जिला में, सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, लोगों के लाभ का काम, उसके बावजूद इस तरह की बात तेजस्वी जी बोलते हैं, यह अपमानजनक है, उनको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो आपने जैसे विकास की बात की, आपने कहा कि जंगल राज अभी भी लोगों को याद है। सत्येंद्र शाह की जब बात आई थी, जंगल राज की बात हो रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली जब अनंत सिंह जी का भी अरेस्ट हुआ, तब फिर से बात आ गई एनडीए पर। वहां पे सेंट्रल मंत्री गए हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वहां पे गए हैं। तो क्या ये एनडीए की तरफ से एंडोर्समेंट हुआ कुछ जंगल राज के लिए? आपको लगता है कि जो आप जंगल राज कह रहे थे उसको थोड़ा वार लगा है? देखिए, घटना तो कहीं भी हो सकती है, घटना हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन ने एक्शन किस रूप में लिया? प्रशासन ने एक्शन लिया। आरजेडी का शासनकाल होता तो अपराधी अपराध करके भी छुट्टा घूमता रहता। हमारे यहाँ घटना होती है, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन एक्शन होता है। और आज कहाँ आनंद सिंह जी है? लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर्स और डेप्यूटी सीएम गए हैं, उनके गए हुए एक अलग विषय है, उनकी पार्टी का मामला है, जो व्यक्तिगत किसी का संबंध हो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन प्रशासन शासन ने कार्रवाई की, जेल के अंदर बंद है। उस वक्त आरजेडी के शासनकाल में अपहरण किसी बच्चे का होता था, अपराधी और अपहरण जिस बच्चे का होता था उसके माता पिता के बीच पंचायत करने का काम मुख्यमंत्री आवास में होता था। कितनी फिरौती की रकम इस
अपराधी को दे दी जाए कि बच्चा यह अपराधी छोड़ दे, या मुख्यमंत्री आवास से तय होता था। आज ये नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास से एक्शन की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, और आपके सामने है कार्रवाई हुई। तो बेरोजगारी की जो बात करें तेजस्वी, या वो कह रहे हैं कि युवा वोट हमारे साथ है, आपको लगता है उसका कोई इम्पैक्ट है? तेजस्वी और राहुल का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ बिहार में, क्या कॉम्बिनेशन है तो दुनिया देख रही है। अभी लगातार महीना भर से ज़्यादा से SIR के नाम पर यात्रा कर रहे थे राहुल जी, और आप लोग उनके मुंह में उंगली डाल डाल कर पूछ रहे थे कि आपके गठबंधन का लीडर कौन होगा, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं बोल रही थी कि तेजस्वी यादव होंगे। अंत में आकर के एक तरह से कही कि जबरदस्ती गला RJD के लोगों ने दबाया, तब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो किस तरह से उन लोगों का चल रहा है तो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि बीजेपी ने नीतीश जी को मतलब वो नहीं देखना चाह रहे थे उनको CM, उनको आखिरी 1-2 दिन में कहना पड़ गया उनका नाम। नहीं, शुरू से कह रहे हैं हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है। माफ कीजिए, कुछ कंफ्यूजन तो मीडिया के चलते हो जाता है। हम अभी भी मीडिया के बंधु से कहना चाहते हैं, यह सवाल नहीं पूछा जाए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, और ऐसा इसलिए कि बिहार की जनता चाहती है। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, इस बार इलेक्शन में आप कोई नंबर देना चाहेंगे कि कितना मिलेगा NDA को, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो जब वोट करें क्या सोच के वोट करें? विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसका एक अनुमान होता है कि 75% नंबर मिल जाएगा, 80% मिल जाएगा, और कई बार उसकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। इस बार के चुनाव में जो उम्मीद की बात आप कर रही हैं उससे ज़्यादा मार्क्स जनता देने वाली है। Thank you so much for joining us. So there you heard it from Mr. Upendra Kushwaha talking about how this region, the Shahabad region, where in 2020 the NDA could not perform well, this time around is going to throw up a surprise. That's his word from here. And this time, it is Upendra Kushwaha's wife, Snehalata Kushwaha, who has been handed a ticket from the Sasaram seat for the contest. Will the Kushwaha community pick her as their next leader? Joining us here on the constituency as we find out the mood of the people is the candidate from here, and this time around, how is it going to be different from 2020? Let's find out from her. Snehalata ji, thank you for joining us on the election yatra. Tell us कि आपका यहाँ पे कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो अभी 2020 में जैसा हुआ था यहाँ पे महागठबंधन को दे हैड वन अ लॉट ऑफ सीट्स, इस बार NDA का ऐसा क्या बदला है कि इस बार NDA के साथ रहेगी यहाँ की जनता? देखिए, NDA इतना काम कर रही है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, तो महिलाओं तो बिल्कुल कुछ सुनना ही नहीं चाह रही है, उनको NDA के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। तो आप क्या कहेंगी, जंगल राज की वजह से या महिलाओं के लिए काम हुआ है? आपका मेन एक्स फैक्टर क्या रहेगा इस इलेक्शन में? देखिए, जंगल राज से तो पहले का जो लोग हैं, पहले पीछे का जो देखे हुए जंगल राज, उनको पता है कि दोबारा नहीं लाना है, और अभी जो महिलाओं के लिए खासकर काम सरकार ने किया है, तो इसलिए सभी लोग मिला जुला कर NDA सरकार ही चाहती है। आपके यहाँ की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि जब वो वोट करें तो क्या सोच के वोट करें? जनता को मालूम है कि कहाँ वोट करना है, और उन लोगों को पता है कि बस NDA सरकार को लाना है, किसी दूसरे को देखना नहीं है, तो इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो नीतीश जी रहेंगे CM? बिल्कुल नीतीश जी रहेंगे। Thank you so much for joining us. So this was the candidate speaking to us. A lot of women voters, that is the factor that she is going for, saying that women are unhappy with what has happened previously, and they remember the Jungle Raj, and that is what they will continue to remember as they will remain with the NDA. The dominance of the Kushwaha community here cannot be understated. From 1980 to 2015, only candidates belonging to the Kushwaha community have been elected from the Sasaram constituency. But in 2024, Upendra Kushwaha himself came third in the Lok Sabha polls here due to a possible split in the votes, with independent candidate Pawan Singh also in the fray. However, this time the NDA has roped in Pawan Singh as well, as they look to avoid the splitting of votes to ensure they bounce back from their 2020 setback. So in the
the 2020 elections, the NDA had an election to forget over here, and Upendra Kushwaha was also not part of the NDA. This time around, what is the difference that it's going to bring now that Nitish Kumar and Upendra Kushwaha are with the NDA? Previously, the BJP had won just 2 seats here. How different is it going to be this time around? What's the factor going to be on the ground? Let's find out. The Kushwahas are the second largest OBC bloc after the Yadavs. So the NDA would hope that Upendra Kushwaha's presence in the NDA boosts their prospects in attracting the votes of the non-Yadav OBCs. And that's why today we want to find out from the voters of Sasaram whether BJP's caste calculations have had the desired impact on the ground. So let's find out what the mood is like on the ground. Let's get talking to the people and see what they think is the change that they need in the region. Let me speak to a few people and find out यहाँ पे election कैसा चल रहा है. आपको क्या लगता है सियासी हवा किस तरफ है? अभी भाजपा का ज्यादा लहर है। अच्छा काम किया है नीतीश कुमार ने? हाँ, नीतीश जी ने काम किए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? विकास, मेन विकास नीतीश कुमार ने विकास किया है। हाँ। लाइट 24 घंटा में 22 घंटा रहता है। रोड नाली सब विकास तो उनके रीजन में हुआ है। क्राइम कम हुआ है। हाँ। यहाँ चलना मुश्किल था पहले। हाँ। 6 बजे का डेयरी में स्टॉपेज था, अब तो है कि कई बजे रात में आइए, ये सब कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। अभी इनके रीजन में बहुत काम हुआ है, जो कभी सोचा नहीं था लोग गरीब लोग की मुखिया बनेंगे। सब नीतीश कुमार का ये देन है, हर जाति को साथ लेके चल रहे हैं। तो आपके लिए क्या फैक्टर रहेगा, नीतीश कुमार की उपेंद्र कुशवाहा की मोदी जी को देख के वोट करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? मेन तो नीतीश और मोदी जी है। नीतीश और मोदी जी? मेन तो नीतीश और मोदी जी है। वो अच्छा कर रहे हैं। मुखिया वो है, लोग दोनों तो वही ना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। चलिए, so many think that they are the people who have worked and that is the reason why they want to vote for them. So let's find out from other people as well on what they think. नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किया, ऐसा क्यों? क्या उनका काम किया? काम है, बहुत सारा काम है जो वो अच्छा किए हैं। अच्छा, रोड अच्छा हो गया, लाइट का सुविधा अच्छा हो गया, और हॉस्पिटल वगैरह में जो भी काम होता है अच्छा होता है। तो उन्होंने ही अच्छा काम किया है। यहाँ पे इस रीजन में जैसे एनडीए ने पिछली बार अच्छा नहीं किया था, उस समय क्या आपको क्या लगता है क्या गलतियाँ हो गई थी? इस बार क्या बदला है? ये तो हम नहीं बतला सकते क्या गलतियाँ हो गई, लेकिन बस ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। ये आपको क्या लगता है, आप जब वोट करती हैं तो क्या सोच के वोट करती हैं? अपने वोटिंग का बताइए, कौन पसंद है आपको यहाँ पर? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? हाँ। नीतीश कुमार? हाँ। क्या अच्छा काम किया उन्होंने? महिला के बिजनेस के लिए 10,000 रुपए दिए। आपको मिले 10,000? 10,000 मिला तभी तो मैं बिजनेस चालू की। अच्छा, तो आपको उन्हीं पे विश्वास है? हाँ, विश्वास है। तो अभी जैसे महिला को बहुत सुविधा भी दिए, बेटी बहन को दिए, बहुत सुविधा दिए। कहूँ से लड़कियाँ हमारी पढ़कर घरे अच्छा से जा रही है। साइकिल भी दिए, उसको दूरी पड़ रहा है, और स्कूल कॉलेज जो भी है दूरी पड़ रहा है, इसके लिए साइकिल का व्यवस्था किए। हमारी लड़की पढ़ के घरे जा रही है, बच्चा भी पढ़ के घर जा रहा है। अगर नीतीश कुमार जी ने 10,000 दिया है, तो अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि जब वो आ जाएंगे पावर में तो 30,000 देंगे। उन पे है विश्वास? अभी तो समय बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसके बारे में मैं आगे क्या बता सकती हूँ। आपको कौन पसंद है वो बताइए। जो मेरे बिजनेस चालू करने के लिए गरीब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो बढ़ावा 10,000 रुपए मिला, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देती हूँ। आपको भी वही लगता है, नीतीश जी को दोबारा देखना चाहेंगे? ऐसा क्यों? मैंने कि सब में किसान के पैसा के मदद कर रहे हैं, इसीलिए। अच्छा, तो नीतीश और एनडीए जी को यहाँ पे देखना चाहेंगे। तेजस्वी या महागठबंधन को देखेंगे यहाँ पे? पसंद करते हैं? नहीं। क्यों? अब वो जो सब कुछ कर रहे हैं तो सब कुछ इन्होंने। हाँ, लेकिन उन्होंने गरीब के अमीर के सब के देख रहे हैं। अच्छा, इसीलिए। आपको भी वही लगता है कि नीतीश कुमार और एनडीए ने काम किया है तो वही आएंगे? देखिए, एनडीए का काम बोलता है, ठीक है। पहले इतना विकास नहीं था, अभी जितना ये 15 साल में विकास हुआ है, इसके पहले इतना विकास नहीं हुआ था। हम लोग चलते थे तो रोड बढ़िया नहीं था, रोड का विकास हुआ। बिजली बहुत अच्छा रहने लगा, जो 24 घंटा बिजली रहता है। पहले बिजली 2-4 घंटा आता था और उसके बाद कटता था, तो कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में एनडीए का जब से सरकार बना है, तब से नीतीश कुमार ने बहुत बिहार में डेवलप किया है, इसलिए एनडीए ही जीतेगा।
हाँ 2020 में जैसे नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे, यहाँ पे तो इस रीजन से सबसे ज्यादा वही जीते थे। आपको क्या लगता है इस बार एनडीए अच्छा करेगी यहाँ पे? नहीं, एनडीए का तो माहौल सब जगह है, पूरे बिहार में एनडीए का लहर है। क्या आप यहाँ पे कुछ बदलाव देखना चाहेंगे कि बहुत साल हो गए उनको यहाँ थोड़ा सा ये है कि बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि किसी भी क्षेत्र में आएंगे तो लोगों का इनकम बहुत कम हो गया है। ये इनकम किसी तरह से बढ़ना चाहिए। बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पे। Many are talking about also the development, the electricity that they have seen. Women especially, so the women factor is going to be very, very important, and they have been speaking about the money that they have received as well. One cannot ignore the fact that in 2010, the NDA actually managed to win 19 out of the 22 seats here. So the BJP-led alliance certainly has potential, but must get their caste calculation right to get the mandate in their favor. For the Mahagathbandhan, Shahabad was a gold mine in 2020. But will it be more of the same in 2025? The youth of the region, what is it that they are looking for? आप लोग यहाँ पे कैसा चेंज देखना चाहेंगे? चेंजेस हम लोग एनडीए का सरकार तो बेटर नहीं है, फिर भी कांग्रेस का सरकार हम लोग देखना चाह रहे हैं। बदलाव थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं नीतीश सरकार जो है ना वो अच्छा नहीं काम कर रहे हैं और चेंजिंग होना चाहिए जी। जैसे यहाँ पे जितने लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सालों से हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। आप विकास तो नहीं विकास हुआ है, और उन्होंने कहा है कि पहले जो जंगल राज था, जैसे क्राइम कम हुआ। आपको लगता है या आपको क्या लगता है? अभी विकास कुछ भी नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं है। कैसा बदलाव देखना? बदलाव हम लोग चाहते हैं कि रोजगार हो, अच्छा हो, फैक्ट्री हो और नौकरी मिले रोजगार को। हम लोग पढ़ लिख पढ़ गए जैसे घूम रहे हैं, कोई जॉब ही नहीं है। जॉब मिले तब ना कुछ हम लोग कमाएं, बस वही घूमते फिरते रहते हैं पढ़ाई करके। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कुछ लोगों ने वहाँ पे उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ पे बदलाव उन्होंने देखा है, विकास उन्होंने देखा है कि रोड बन गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहले जंगल राज था। आपको क्या लगता है कि वैसा था? आपको लगता है कि जैसे आपके यहाँ पे जितने बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं, उसका कुछ डर है आपको, या आपको लगता है कि वो तब की बात है, आप कुछ बदलाव देख लेते हैं? डर तो पहले से नहीं है, फिर भी पहले से कुछ बेटर हुआ है। मतलब रॉ इलेक्ट्रिसिटी तो वो तो हम लोग पैसा देते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं कि फ्री मिलता है। यहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक का, हम लोग पैसा देते हैं तो मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से और रोड आपको भी वही लगता है? रोड भी है तो ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार अच्छी है अभी जो भी है। मतलब पहले जंगल राज था, अब नहीं है। बहुत मतलब पहले से ज्यादा सुविधा है। बीजेपी की सरकार थोड़ी खराब है, वो देश चला रहा है, क्या बिहार को नहीं चला पाएगा? अब यहाँ पर भी सरकार करती है, मानते हैं पुल चोरी हो जाता है रात में, मतलब जो भी हो यहाँ के लोग चोरी कर लेता है, तो क्या कंपनी क्या यहाँ बैठाएगी बताइए आप? आपको क्या लगता है यहाँ पे नीतीश कुमार या फिर कुछ बदलाव देखना चाहेंगे यहाँ पर? बदलाव क्या अच्छा नहीं किया? रोजगार की जरूरत है, बेकार हम लोग पड़े हुए हैं और क्या। अच्छा, जो रोजगार देगा उसी को आना चाहिए। तो रोजगार कौन? तेजस्वी और कांग्रेस गारंटी कर रहे हैं हर घर एक नौकरी, तो उनके उन्हीं के हैं, उनके ऊपर विश्वास है। धोखा देंगे, 5 साल के बाद हटा देंगे। बात क्लियर है। लोकतंत्र है ना भाई, मौका देना चाहिए। तो एक बार बिना मौका दिए तो कुछ होगा नहीं। आपको भी मौका मिला तभी पत्रिका क्या कर रही है, थोड़ा कर पाती है। तो आप इन्हें मौका दे के देखेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो उनको और दोबारा मौका देंगे, नहीं देंगे तो अच्छा 5 साल का टाइम मिलेगा उनको। अच्छा, so there are many who are talking about the changes that they have felt, the women in particular, and that's going to be the silent vote that they are going to be speaking of as well, to talk about what are the changes that we are going to see. In 2020, the region was a big challenge for the NDA. Upendra Kushwaha was not a part of the NDA, and that is going to be a big factor this time around. With the two together here, is there going to be a change, or beyond the caste lines, beyond the big leaders of the party, are people going to see further away from there and think about the jobs, the changes that they want to see in the region? That is going to be interesting to see. The Sasaram region has often witnessed a direct fight between the NDA and the Mahagathbandhan, and it is likely that it would be more of the same, even as new entrants like Prashant Kishore enter the fray. Even though the
Shahabad region has a predominantly Hindu population of over 70%, the region is certainly a classic case of why the BJP has always enforced on the clarion call, एक हैं तो safe हैं। एक है तो So from 2 seats in 2020, have the lessons been learnt by the NDA or not? This time they've given a majority of the seats from this region to their allies. Let's see what happens. With that, it's a wrap on this show with video journalists Mohan Singh and Anil Arora. This is Pratibha for Times Now.